Welcome students. Now I am going to start the first topic or first chapter of your 12th class syllabus physics, which is the electrostatics or static electricity. इस चैप्टर में हम पढ़ते हुए जाएंगे about the basic definition of electricity, the charges, their types, their basic or fundamental properties, Coulomb's law and the other properties related with the charge like the electric field, electric potential, electric flux, etc. सबसे पहले बात करते हैं about the term static electricity. जब हम लेते हैं static electricity, so first of all electricity is divided in two categories. दो categories आपके आती हैं. Number one is the static electricity and next one is the current electricity. So the term current electricity is well known to you. You are familiar with this term because in your high school classes or 10th आपने definition पढ़ी होती है that current is the flow of charge or the moving charge constitutes the electric current. So current electricity is that branch which deals with the moving charges or charge in a state of motion. While the word is static means the stationary or rest. That's why it deals with the properties of charge or कौन सा charge which is at rest or stationary at a point or place. तो ये अपनी पहली चीज थी, what is static electricity. Now the question comes, what is the electricity? Actually electricity ही क्या है? So for that purpose आप definitions देने की कोशिश करते हैं. Electricity is a certain type of energy which runs our fans, coolers or other machines, or it is the flow of charge etc. ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन सही है. हम बात करते हैं हिस्टोरिकल. बेसिक जहाँ से जाओगे तो नियर अबाउट 2600 ईयर्स एगो, दैट मीन्स आज से 2600 साल पहले, इन ईयर 600 BC देयर वॉज अ ग्रीक साइंटिस्ट नोन एज थेल्स. और थेल्स ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे. एक्सपेरिमेंट उसने कुछ बेड कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग रॉड्स को फाइबरस यानी कि रेशेदार मटेरियल्स के साथ रब किया. फॉर एग्जांपल जो उसने रब किया, एक सिंपल सा सब्सटेंस लेते हैं, द एम्बर वाज रब्ड विद वूल. When amber and wool are rubbed together, इस एक्सपेरिमेंट को आप घर में भी कर सकते हैं. टेक अ प्लास्टिक कॉम्ब और प्लास्टिक पेन और रॉड, रब इट विद योर हेयर या वूलन स्वेटर या फिर कैट्स फर, बिल्ली की खाल, इनसे आप रब करें. जो रिजल्ट आपको मिलते हैं यही रिजल्ट थेल्स ने भी ऑब्टेन किए. और क्या रिजल्ट थे कि व्हेन दीज टू सब्सटेंसेस आर रब्ड टुगेदर देन दीज एक्वायर अ यूनिक प्रॉपर्टी. एंड व्हाट इज दैट यूनिक प्रॉपर्टी or unique property है to attract the smaller objects. Smaller objects means the paper pieces, the straws, the dry leaves, etc. Now this property जो इन substance पर develop होती थी due to the rubbing of these substances, this property to attract the other substances, that property was termed as the electricity. ये थी इलेक्ट्रिसिटी की बेसिक डेफिनेशन. फर्दर आपसे बात करेंगे ये प्रॉपर्टी जब आप लेते हैं, इट इज इलेक्ट्रिसिटी, देन इट वाज आल्सो नोन एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी. एंड व्हाई फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज इट हैज बीन बिलीव्ड दैट परहैप्स दिस प्रॉपर्टी डेवलप्स ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन द टू सब्सटेंसेस और सरफेसेस. फर्दर व्हेन दीज ऑब्जेक्ट्स ऑक्यूपाई दिस प्रॉपर्टी, जब ये आपके ऐसा करने लगते हैं, देन दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रीफाइड और दीज आर नोन एज चार्ज्ड. फर्दर एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स. नंबर वन आपके कहलाते हैं पॉजिटिव चार्ज एंड अदर वन इज नोन एज द नेगेटिव चार्ज. थेल्स के टाइम में या उसके बाद आप देखेंगे देयर वाज नो बेसिक डेफिनेशन फॉर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. वो हम आगे लेंगे. उस समय जो हमने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के एग्जांपल लिए वो कुछ इस बेसिस पे लिए. फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिखता हूँ ग्लास रॉड पॉजिटिव एंड सिल्क क्लॉथ हैज नेगेटिव. दैट मीन्स व्हेन यू आर रबिंग द ग्लास रॉड विद सिल्क क्लॉथ देन बोथ आर इलेक्ट्रिफाइड और चार्ज.
then the charge developed on the glass rod is taken as the positive charge, and the charge developed on the silk cloth is taken as the negative charge. Similarly, in case of the wool and amber, जो हमने पहले लिए हुए थे, wool is considered as the positive and the amber is considered to be negatively charged. मैंने कहा ये कैसी डेफिनेशन थी? हिस्टोरिकल डेफिनेशंस. Now the question comes, why this property develops and how these charges positive and negative are developed. So for that purpose we have to take the help of the atomic structure, where we will go for the electronic theory behind the development of charge or electricity. इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी पर जब आप जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी आपसे एक बहुत सिंपल सी चीज़ बताती है जो आपने पढ़ रखी है. एंड व्हाट इज दैट? It is the each and every material consists of atoms, and each material has a positively charged nucleus, and the negatively charged electrons are revolving around the nucleus. The positive charge of the nucleus and the negative charge of electrons, that is just equal to each other. That's why the charge on a nucleus is zero, or we can say the atom is neutral. Now in your previous classes 11th केमिस्ट्री में आपने पढ़ा हुआ था, when जब हम बोर-बरीज मॉडल और एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, then these orbits are now known as the energy levels. सबसे लोवेस्ट एनर्जी लेवल that is known as the ground state or the ground energy level. The further energy levels are called excited energy levels. आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि when some external energy is supplied to an atom, if we are supplying some external energy, then the electrons of the ground state, these absorb this energy, get excited and jump into the higher levels. So अगर इसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू करें, that means if a sufficient amount of energy is given to an atom, then these electrons can leave the atom, and this process was known as the phenomena of ionization. जब आप आयनाइजेशन जाते हैं तो यही आपने पढ़ा है. सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल आपको याद दिलाता हूँ आयनाइजेशन का. सोडियम एटम विच कंटेन्स 2, 8 and 1 electrons as the electronic configuration, and it can lose one of its electron due to the external energy. अब जब आप ऐसा करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, these are known as the outermost electrons. These are called free electrons also. Why? Because these can be detached or dissociated from the atom by applying some amount of external energy, and the minimum energy which is required, the minimum required energy to draw out the electron, minimum required energy to draw out electron is called work function. ये वो मिनिमम एनर्जी होगी जिसे देने से आपका इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा, यानी कि एटम आयनाइज हो जाएगा. अब बात करते हैं व्हाट विल हैपन नाउ. अब वापस इस थ्योरी पर जाते हैं. आखिरकार ये रबिंग से क्या हो रहा था? So definitely if you are rubbing two substances together, that means you are doing mechanical work on them, or you are supplying the energy to the atoms or the electrons. So what will happen? The electrons will get excited, these will move in upper orbits, and the atom can ionize. अगर आप वर्क फंक्शन की इक्विवेलेंट एनर्जी सप्लाई कर देते हैं, then the electrons of one surface will get transferred to the other surface. और इसमें आपका एक सबसे सिंपल 9th क्लास का एग्जाम्पल काम में आ जाएगा. फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम गिव्स 1 electron to the chlorine? Definitely the loser, this sodium is loser, so it becomes positively charged or positive ion. तो ये आपका बन जाता है पॉजिटिव आयन, while this chlorine which is receiving the electron, it becomes negatively charged or negative ion. तो इससे आपको थ्योरी में क्या समझ में आता है कि जो लूजर है, द इलेक्ट्रॉन लूजर, it will be defined as the positive charge, while the electron gainer will become
नेगेटिवली चार्ज और इट इज कॉल्ड नेगेटिव। इसीलिए आपसे बताया जाएगा जब भी कभी दो सरफेसेस रब करेंगी तो द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस इन दिस प्रोसेस। द सरफेस विच इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन दैट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज, द सरफेस विच इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन विल बिकम नेगेटिवली चार्ज। नाउ वन मोर कंसेप्ट, when a surface is positively charged that means it is losing the electron, conceptually आपसे बताया जाता है the mass decreases slightly, the mass decreases slightly because you are losing the electrons. Similarly, in case of a negatively charged object the mass increases slightly. And why mass increases slightly? Because it gains some number of electrons. So that was the basic concept about the formation of charges or the electricity. Now, two small things are known to you. Number one, the like charges, for example positive positive और negative negative, अगर इनको आप लेंगे तो जहां हमने स्टार्ट किया था the property to apply the force of attraction, it was known as the electricity. तो अब आपको डिटेल में मालूम है in case of like charges there is the force of repulsion, while in case of the unlike charges there is the force of attraction between the charges. तो ये आपका एक बेसिक कंसेप्ट समझ में आता है कि आखिरकार आपके चार्जेस होते क्या हैं। अब चार्जेस से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी सी सिंपल सी बातें डिस्कस करते हुए जाते हैं। जब आपको ये समझ में आता है चार्ज कहाँ से आते हैं, कितने टाइप के होते हैं, देन द नेक्स्ट थिंग, जैसा कि हम 11th में लास्ट ईयर पढ़ते हैं, वेन एवर अ न्यू क्वांटिटी कम्स टू यू देन यू हैव टू गो फॉर इट्स यूनिट एंड डायमेंशन। सो द चार्ज विच इज डिनोटेड बाय द सिंबल Q, इसके लिए हम यूनिट लेते हुए जाते हैं एम्पियर सेकेंड और कूलॉम। इसकी यूनिट मैंने कहा कि आपके लिए आएगी एम्पियर सेकेंड और कूलॉम इन ऑनर ऑफ साइंटिस्ट। आप पूछेंगे एम्पियर सेकेंड कैसे, तो ये भी याद दिला देता हूं बिकॉज इन 10th आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, दैट इज करंट वॉज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसका मीनिंग होगा Q इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए IT। द यूनिट ऑफ करंट इज नोन टू यू इन द last year's topic of the measurement. It is a fundamental quantity and its unit of ampere, the unit of time is second. Further next thing, the dimensions. Dimensions अगर आप लेंगे तो Q is equals to I और T। I करंट के लिए हम लेते हुए जाते हैं एम्पियर का A और टाइम का आपको मालूम ही है that becomes T. So the dimensions आप याद रखेंगे that will become AT. Finally कुछ एक आध छोटी छोटी और चीज़ें आप याद रखेंगे। जब यूनिट और डायमेंशन आपको समझ में आती हैं देन सम अदर यूनिट्स आर ऑल्सो टेकन। फॉर एग्जाम्पल द CGS यूनिट ऑफ चार्ज, ये आपने कौन से टर्म्स में ली थी, SI सिस्टम में, जो हम लेते हैं एम्पियर और सेकंड। अगर बाय द वे आप CGS सिस्टम में जाते हैं, सो इन CGS सिस्टम द यूनिट ऑफ चार्ज इज ESU। ESU बोलें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट आपको बताई जाएगी अदर नेम ऑफ द ESU और द इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इज द फ्रैंकलिन। ये आपसे बताया जाता है इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। कितना स्मॉल होता है, दैट 1 कूलॉम कंटेन्स 3 into 10 raised to power 1 कूलॉम कंटेन्स 3 into 10 raised to power 9 ESU, या दूसरा नाम मैंने क्या दिया, और फ्रैंकलिन। देन पहली यूनिट जो आपको समझ में आती है इन CGS सिस्टम। देन एक और यूनिट आप याद रखेंगे द लार्जेस्ट यूनिट, क्योंकि हमने जब बात की थी द स्मॉलेस्ट यूनिट, सो दैट इज द ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक और फ्रैंकलिन। देन व्हाट इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जहाँ आप इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऐसी चीज़ें पढ़ते हुए जाते हैं, उस समय जो आप यूनिट इस्तेमाल करते हैं दैट यूनिट इज फैराडे। सो 1 फैराडे इज टेकन एज 96,500 कूलॉम। So that is the basic
information about the charge, its unit, its dimension, and how the charge is originated. Now the next question comes, how a body can be charged. आखिर आप किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं. चार्ज करने का एक सिंपल सा मेथड जो मैंने कहा 26 ईयर्स ओल्ड है, वो तो आपको पता ही है, वो था rub the two objects and definitely these will get charged. Now some other methods are also there. इनमें से दो मेथड सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं. These are known as the conduction and induction. अब सवाल आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंडक्शन एंड इंडक्शन. तो हम बात करते हैं, जरा देखें ध्यान से. सबसे पहला जो मेथड आप लेते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग. हमने क्या कहा, आप काय के बारे में बात करते हुए जाएंगे, मेथड ऑफ चार्जिंग. मेथड ऑफ चार्जिंग में जो सबसे पहला मेथड आपको लगता है वो मेथड लगता है कंडक्शन. कंडक्शन, दिस वर्ड इज नोन टू यू. कंडक्शन का मीनिंग होता है चार्ज का एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में फ्लो हो जाना या चार्ज का एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाना. कैसे होगा ध्यान देखें. कंडक्शन का मीनिंग है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट है एंड यू हैव ए चार्ज्ड ऑब्जेक्ट. नाउ ब्रिंग द टू ऑब्जेक्ट्स इन कांटेक्ट विद ईच अदर. नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इनको कांटेक्ट में ले आए. जैसे आप कांटेक्ट में लाएंगे, सम अमाउंट ऑफ दिस चार्ज विल कंडक्ट और विल फ्लो टुवर्ड्स द अदर कंडक्टर ऑल्सो. यानी कुछ चार्ज आपका इस पर भी डेवलप हो जाएगा और कुछ चार्ज आपका इस पर था ही. जब आप इन्हें वापस सेपरेट करेंगे, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप एंड इन द वेरी थर्ड स्टेप जब आप इन्हें वापस अलग अलग करेंगे तो आपको नजर आएगा इसका चार्ज थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा और इस पर थोड़ा सा चार्ज डेवलप हो जाएगा. अगर थोड़ी देर के लिए हम मान के चलें दीज स्फीयर्स आर आइडेंटिकल स्फीयर्स, तो दोनों का चार्ज एग्जैक्टली इक्वल होगा. दैट मीन्स हाफ ऑफ द टोटल चार्ज एंड हाफ ऑफ द टोटल चार्ज. हाँ, आप यहाँ पूछ सकते हैं अगर इनकी साइजेस डिफरेंट हैं देन व्हाट विल हैपन. सो फॉर दैट पर्पस वी विल स्टडी आवर टॉपिक distribution of charges for the conductors placed in contact. For that purpose we have a derivation and formula also. उसको हम बाद में डिस्कस करते हुए जाएंगे. अभी रफली इतना समझ में आ रहा होगा, इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. नाउ द सेकंड मेथड जो आपके लिए आता है वो मेथड आपका आता है इंडक्शन. और इंडक्शन मीन्स होता है प्रेरणा. दैट मीन्स अपने अकॉर्डिंग किसी दूसरे को वैसा डेवलप करना. इस पर भी हम जाते हैं. अगर इंडक्शन पे आप जाएंगे तो फॉर एन एग्जांपल लेट यू हैव अ रॉड और समथिंग एल्स विच इज अनचार्ज्ड एंड यू आर ब्रिंगिंग टुवर्ड्स इट अ चार्ज्ड रॉड. एक आप चार्ज रॉड इसके पास लेके आते हैं. जब आप लेके आएंगे तो आपको जो अभी हम बता रहे थे, ईच एंड एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ एटम्स. कुछ एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं. दैट मीन्स ईच एंड एवरी कंडक्टर कंटेन्स सम अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड सम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव आयंस. व्हेन दिस चार्ज कंडक्टर इज ब्रॉट क्लोज टू द अनचार्ज्ड. और ध्यान रखिएगा इसमें हम क्या कह रहे हैं, ब्रॉट क्लोज, वी हैव नॉट टच्ड इट. then the relative displacement of charges will take place here. रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि इसमें जो भी पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनमें से इसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आपके स्पेस पर धीरे धीरे जमा होना शुरू हो जाएंगे. ये आपके कौन से जमा होना शुरू होंगे, नेगेटिव आयंस. जबकि पॉजिटिव जो आपके थे पॉजिटिव आयंस दीज विल मूव अवे फ्रॉम इट, दीज विल गेट रिपेल्ड. यानी अब आप देखें इसकी वजह से इसके दोनों सिरों पर दो चार्ज डेवलप होते हैं. दीज चार्जेस आर नॉट प्रोड्यूस्ड, दीज आर इंड्यूस्ड. ये दोनों आपके लिए किस नाम से जाने जाएंगे, ये चार्जेस कहलाते हैं इंड्यूस्ड चार्ज. अब सपोज करें आप चाहते हैं, अभी तो इस पर अलग अलग हो गए लेकिन जैसे ही इसको हटाऊंगा वापस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. तो फिर क्या किया जाए, तो इसी रॉड को आप एक काम करेंगे, व्हेन इट इज चार्ज लाइक दिस, देन इसके इस सिरे को आप कर देंगे अर्थिंग. व्हाट विल हैपन, दिस पॉजिटिव चार्ज विल गेट डिसिपेटेड इन
अर्थ, और जैसे ही अर्थिंग आप प्रोवाइड करेंगे तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली दिस नेगेटिव चार्ज विल बी देयर, एंड जैसे ये पॉजिटिव गया तो इन द नेक्स्ट स्टेप दिस नेगेटिव चार्ज विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। यानी अब आप देखें ये आपका कंडक्टर कैसा हो गया, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब दोनों चीज़ों के डिफरेंस देखें, कंडक्शन और इंडक्शन में बेसिक डिफरेंस क्या है। कंडक्शन इज दैट इन विच द, सबसे पहला डिफरेंस जो आपको मिलेगा, कंडक्शन में आपको क्या चीज़ समझ में आएगी, कंडक्शन अगर हम बात करें कंडक्शन और हम बात करेंगे इंडक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन का सबसे पहला डिफरेंस आपको जो नज़र आएगा, यहाँ आपको मिलेगा बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट, और इसमें आपको नजर आएगा बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, दीज आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। इसमें आपको केवल क्या मिलेगा, बॉडीज आर प्लेस्ड क्लोजली। नंबर सेकंड जो आपको सबसे खास डिफरेंस मिलेगा वो आपको दिखेगा, इसमें यही चार्ज आपका सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी आप क्या कहेंगे, सेम चार्ज इज ट्रांसफर्ड। जबकि इसमें आप ध्यान से देखें, नंबर सेकंड आपको समझ में आएगा, जब आपने पॉजिटिव चार्ज लिया था तो अपोजिट चार्ज इंड्यूस हुआ है, यानी यहाँ पर कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा, हियर इट विल बी द अपोजिट चार्ज विच इंड्यूसेस। तो ये दोनों का फर्क नजर आएगा। अब एक लास्ट कहानी जो हमने इसमें कहा था कि इसके लिए जो आपका चार्ज होगा वो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी इसका कुछ पार्ट इस पे होगा कुछ इस पे होगा, इन दोनों का टोटल करोगे तो वापस फिर इसका चार्ज वही हो जाएगा। अब यहाँ भी एक क्वेश्चन आता है, ये जो चार्ज इंड्यूस हुआ है क्या इसके बराबर होगा या इससे कम ज़्यादा होगा, तो डेफिनेटली आपसे कहा जाता है इंड्यूस्ड चार्ज इज इक्वल्स टू होता है ओरिजिनल चार्ज एंड 1 माइनस 1 अपॉन के, और अगर आप देखेंगे क्यू माइनस क्यू अपॉन के, यानी जो इंड्यूस्ड चार्ज है वो हल्का सा कम होगा। अब आप पूछेंगे व्हाट इज के हेयर, के आपके कहलाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सब्सटेंस। इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वर्ड की चर्चा जब हम ग्लॉम्स लॉ पढ़ेंगे उसके बाद काफी डिटेल में आएगी, व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फिलहाल इस स्टेज पे आप इतना देख सकते हैं, इट इज सम टाइप ऑफ कांस्टेंट फॉर द मटेरियल। नाउ स्पेशल एक केस बता देता हूं, और स्पेशल केस क्या बताऊंगा, फॉर मेटल्स। अगर आप मेटल्स के केस में जाते हैं तो मेटल्स के केस में k इज इक्वल्स टू होता है इन्फिनिटी, इसका मतलब अगर 1 अपॉन इन्फिनिटी रखेंगे सो दैट विल बिकम 0, और ये 0 हो गया तो फिर आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा q डैश इज इक्वल्स टू माइनस क्यू से जो आपको क्या चीज बता रहा था, जो मैंने आपसे कहा था अपोजिट चार्ज इज इंड्यूस्ड। तो इस केस में केवल और केवल मेटेलिक कंडक्टर्स में आप ये टर्म याद रखेंगे, अगर ये दोनों मेटेलिक कंडक्टर्स हैं तो ही केवल आपका इंड्यूस्ड चार्ज यानी कि q डैश इज इक्वल्स टू कितना होगा, q इक्वल एंड अपोजिट, और इन केस ऑफ द अदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम द चार्ज विल रिड्यूस बाय ए सर्टेन अमाउंट। इज इट क्लियर? ठीक, ओके तो आपको इस तरह से ये समझ में आ गया व्हाट इज द चार्ज, हाउ द चार्ज इज डेवलप्ड, एंड नेक्स्ट थिंग और अदर मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या होंगे, यानी कि आपके कंडक्शन और इंडक्शन। नाउ वी विल गो फॉर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज। व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अगर बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात करेंगे तो फिर से एक बार याद दिलाऊं, हाउ द चार्ज डेवलप्स। डेफिनेटली चार्ज डेवलप्स by the rubbing of two objects together in which the transfer of electron takes place from one body to the another body. The body which loses electrons, it becomes positively charged, and the body which gains electrons, it becomes negatively charged. अब अगर आपको ये समझ में आता है तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको समझ में आ जाएगी। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट आपसे कहती है चार्ज इज ट्रांसफरेबल।
And what is meant by transferable? भैया transferable means this one. Charge can be transferred from one surface to the other. That was the method of conduction also. When we have kept two spheres in contact, then the charge of the first sphere was transferred to the charge of the to the second sphere. Now next thing, charge is always associated with mass. सेकंड प्रॉपर्टी आपसे कहती है चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास ऑलवेज. चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास ऑलवेज का हमारे लिए मीनिंग क्या है? वो इसलिए कहा गया है बिकॉज चार्ज इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो यूज्ड एज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. नाउ थिंक अबाउट द एनर्जी ऑफ लाइट, साउंड और हीट. आपका ध्यान जाएगा साउंड, हीट, लाइट, दीज एनर्जीज ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ waves. These are not the particles or these are not associated with mass. But now go for the charge. When you are transferring charge from one body A to body B, then a particle is transferred. Charge जब भी ट्रांसफर होगा तो किसके फॉर्म में ट्रांसफर होगा? इन फॉर्म ऑफ ए मासिव पार्टिकल्स. इसलिए मैंने कहा चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास ऑलवेज. हाँ, ये याद रखेंगे, mass is not associated with charge. अब दोनों स्टेटमेंट्स में फर्क क्या है? सिंपली चार्ज जा रहा है तो मास जाएगा, बट मास इज नॉट एसोसिएटेड विद चार्ज. मास के साथ हमेशा चार्ज हो ये जरूरी नहीं है, बिकॉज कोई ऑब्जेक्ट आपका पॉजिटिव हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट आपका नेगेटिव हो सकता है, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट आपका न्यूट्रल भी हो सकता है. अगर आप पास प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है देन यू हैव द न्यूट्रॉन ऑल्सो. तो न्यूट्रॉन होने का मतलब ये है कि मास पे चार्ज हो. इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज नॉट नेसेसरी. नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज. थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज बताता है चार्जेस कैन बी एडेड एल्जेब्रिकली, और एल्जेब्रिकली एडिशन को हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज. एडिटिव प्रॉपर्टी आपसे क्या कहेगी? एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब है चार्जेस आर एडेड एल्जेब्रिकली. नाउ द मीनिंग ऑफ एल्जेब्रिकल एडिशन. एल्जेब्रिकल एडिशन मीन्स यू हैव टू कंसीडर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ बॉडी, you are giving a charge of +2 coulomb to it and then -1 coulomb to it, so the net charge will be +2 -1, that is 1 coulomb. और कौन सा? +1 coulomb. So इसका मतलब net charge can be added directly or algebraically. It also shows that charge is a scalar quantity. इसलिए आपको याद आएगा स्केलर मैंने कहा है, अगर ये आपकी कोई वेक्टर क्वांटिटी होती लाइक द फोर्स, फील्ड, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एटसेट्रा, तो फिर हम इसे डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते थे. वी हैव टू गो फॉर द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन. फॉर एग्जांपल द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, in which not the addition but the resultant is calculated by the formula of r is equals to a square plus b square plus 2ab cos theta. इसलिए मैंने कहा ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई नहीं होगा. Why this formula is not applied? Because charge is a scalar, so it can be added directly or algebraically, so it is the additive in nature. Now the next thing is the invariance of charge. इनवेरियंस, वेरियंस और वेरी होने का मतलब है किसी भी चीज का चेंज होना. इनवेरियंस ऑफ चार्ज यानी चार्ज अपनी वैल्यू चेंज नहीं करता है. तो कहाँ नहीं चेंज करता है ये याद रखेंगे. विद स्पीड. आप कहेंगे मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है, दो चीजें बताता हूँ. लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटीज लाइक द काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मोमेंटम एटसेट्रा, दीज चेंज विद द स्पीड. फर्दर लास्ट ईयर रिलेटिविटी में हमने केमिस्ट्री और मैथ्स दोनों में पढ़ा है द वेरिएशन ऑफ मास. आपसे बताया जाता है मास m इज इक्वल्स टू होता है m0 अपॉन √1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, जहाँ m0 किसी भी पार्टिकल का क्या कहलाता है? रेस्ट मास, और m कहलाता है काइनेटिक मास और एक्चुअल मास. v इज द
स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट और पार्टिकल। ये आप चेक करेंगे, न्यूटन्स लॉज के बाद भी ये बताते थे और केमिस्ट्री में भी आपने हाइजेनबर्ग थ्योरी के आसपास ये चीजें पढ़ी हैं। इसका मतलब है अगर कोई भी चीज आपकी एक पर्टिकुलर स्पीड पर जा रही है तो फिर उसके मास में वेरिएशन होता है, मास उसका थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे टर्म क्या करेगा, इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं इंक्रीज करेगा। और अगर ऐसा है तो मास कैसा हुआ, वेरिएबल, बट द इनवेरियंस ऑफ चार्ज सेज दैट चार्ज विद स्पीड आपका क्या होगा, नो चेंज। और एग्जाम्पल दे देता हूं, फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको मालूम है द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट इक्वल, देयर चार्जेस आर इक्वल, बट द प्रोटॉन्स आर एट रेस्ट एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग विद हाई स्पीड। और अगर मान के चलें कि द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज चेंजिंग विद इट्स स्पीड, तो आपको समझ में आएगा अगर इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज चेंज होगा देन इट विल नॉट रिमेन इक्वल टू द चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स। इसलिए ये जिस कंसेप्ट को चैलेंज करेगा वो क्या होगा, वो होगी आपकी न्यूट्रलिटी ऑफ एटम। न्यूट्रलिटी ऑफ एटम के मुताबिक द चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स मस्ट बी सेम। सो फॉर कीपिंग द charge of electrons and protons just equal to each other, it is required that the charge of electron should not vary due to its motion or due to its speed. So that is the principle of invariance of charge. Now the fifth property of the charge says charge is conserved. So that is the law of conservation of charge. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आई थिंक कंजर्वेशन लॉज आपने बहुत सारे पढ़े हुए हैं, इसको डायरेक्टली हम डिस्कस कर देते हैं। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली फ्रॉम वन सरफेस टू द अदर, दो द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल बॉडीज ए एंड बी, इनका शुरुआत में अगर आप चार्ज माने दोनों न्यूट्रल थे, दोनों का चार्ज जीरो था, टोटल चार्ज वॉज जीरो। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, इसका चार्ज पॉजिटिव होगा, इस पर पहुंचा, इसका चार्ज नेगेटिव होगा। बट अगेन जब आप टोटल चार्ज करेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सो द चार्ज ऑफ द एंटायर सिस्टम, इस पूरे सिस्टम का चार्ज दोबारा कितना आएगा, जीरो। इसीलिए मैंने कहा दिस चार्ज इज नॉट क्रिएटेड, इट इज नॉट destroyed, it is just transferred. So that's about the law of conservation of charge. Further, the next property is the charge produces electric and magnetic fields. तो चार्ज क्या क्या प्रोड्यूस कर सकता है, इस पे जाते हैं। आए जब हम जाते हैं, सबसे पहली चीज, अगर आप पास कोई चार्ज है एट रेस्ट, यानी हमने कहा v इज इक्वल्स टू जीरो, अगर v इज इक्वल्स टू जीरो है तो फिर आपको समझ में आएगा यहाँ पर केवल और केवल एक चीज डेवलप होती है और वो चीज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब द एरिया अराउंड द चार्ज इन विच इट्स इफेक्ट में बी एक्सपीरियंस। ये पूरा एरिया जहां तक इसका असर आप एक्सपीरियंस करेंगे, ये किस नाम से आना जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से। अब चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो डेवलप करेगा ही, ठीक है, तो इसमें तो कोई खास बात नहीं थी। तो खास बात कहाँ से स्टार्ट होती है, खास बात यहाँ से स्टार्ट होती है इफ द चार्ज इज इन स्टेट ऑफ मोशन। नाउ द मोशन इज ऑफ टू टाइप्स, नंबर वन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, अदर वन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो पहले हम लेते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, चार्ज इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। अगर कांस्टेंट स्पीड से आता है तो 10th के एक चैप्टर का नाम याद करें, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ ए मूविंग चार्ज। इसलिए आप मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो, और मैग्नेटिक फील्ड मतलब विच इज रिटन बाई वेक्टर बी, इट इज रिटन बाई वेक्टर ई, इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड लास्ट द थर्ड आपसे कहता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और वी कैन से द एक्सेलरेटेड मोशन।
नॉन यूनिफॉर्म और एक्सेलरेटेड मोशन। अगर कोई चार्ज आपका एक्सेलरेट है तो फिर क्या होगा, अगर एक्सेलरेटेड है तो थोड़ा सा जो मैं थोड़ी देर पहले अपनी से डिस्कस कर रहे थे, याद करें हम पढ़ते थे रदरफोर्ड मॉडल इन 11th, और रदरफोर्ड मॉडल का जो ड्रॉबैक आपको बताया जाता था वो ये बताया जाता था कि एन इलेक्ट्रॉन और चार्ज इज मूविंग अराउंड द nucleus in a circular path, and if it is moving around the nucleus in a circular path, then what will happen, it will experience a centripetal acceleration। क्योंकि ये आप लास्ट ईयर 11th में फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं कि अगर कोई पार्टिकल आपका किसी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो दिस इलेक्ट्रॉन हैज टू सफर अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता था v²/r। अब मैं आपको याद दिलाता हूँ 11th केमिस्ट्री जो आपसे बताती थी, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग द अबाउट द न्यूक्लियस, देन इट विल एक्सपीरियंस a centripetal acceleration, and according to electrodynamics an accelerated charge radiates the electromagnetic waves or electromagnetic radiations। That's why हम वहाँ बात करते थे the energy of this electron will dissipate in form of photons or electromagnetic radiations, so it will lose its energy continuously and will drop inside the nucleus। तो ये टॉपिक मैंने इसलिए याद दिलाया कि वहां से आपको ये रिजल्ट अपने आप याद आ जाएगा कि अगर कोई चार्ज आपका एक्सेलरेटेड है तो फिर उससे आपकी डेवलप होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या आप इन्हें कह सकते हैं रेडिएशंस। तो ये सारी प्रॉपर्टी समझ में आती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडिएशंस। नाउ वन मोर प्रॉपर्टी इज देयर, और दो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज आपके पास जो आती हैं उनमें से अगली प्रॉपर्टी आपको बताती है चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर मींस अगर आप किसी भी कंडक्टर को चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो आपका ध्यान जाएगा दीज चार्ज विल रिपेल ईच अदर, और अगर रिपेल करेंगे तो फिर इस कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों मूव करेंगे अपोजिट, और कब तक मूव करते हुए जाएंगे, अंटिल दे रीच टू द फाइनल एंड और फाइनल सरफेस ऑफ द कंडक्टर। दैट्स व्हाई इफ यू आर चार्जिंग अ कंडक्टर, लेट इट बी पॉजिटिव चार्ज, then this positive charge will flow towards the final end and it will reside on the surface of the conductor। So that was the next property, property number 7 जो आपसे बताती थी charge reside on the surface of conductor। Now the property number 8, charge leaks, और कहाँ से लीक करता है, leaks from sharp ends और sharp points। So how it is possible, इसको ही बात करते हैं जो भी बात कर रहे थे, charge is transferred। Now we can take the object the shape of which is like this। अब आप इसको चार्ज करें, जब आप चार्ज करेंगे so charge will distribute on its surface like this। Now watch it carefully। Now a term comes which is called charge density। चार्ज डेंसिटी पे अगर आप जाएंगे तो डेंसिटी की डेफिनेशन यू नो इट वेरी वेल, इट इज द चार्ज प्रेजेंट इन यूनिट एरिया। जैसे आपने डेंसिटी पढ़ी थी, डेंसिटी वाज द मास प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम, ये क्या होगा, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ द कंडक्टर। नाउ इन केस व्हेन द कंडक्टर टेंड्स टू be a sharp end, in this case the area will tends to 0, the area will be extremely small, negligible, or will tends to 0। That's why the charge density, charge upon surface area, if A tends to 0 then the charge density will becomes infinitely large, or it tends to infinity, which is not practically possible। इसलिए इसके कांटेक्ट में आने वाली सराउंडिंग एयर it gets ionized and this charge leaks or dissipates। इसको भी आपने पढ़ा हुआ है in the discharge tube of chemistry।
when the discovery of electron and proton is taught to you. The air coming in contact with a highly charged density gets ionized. Then the last property of the charge, and the last property is about the quantization of charge, one of the most important principles from the point of view of electricity or for the examination purposes. This principle is principle of quantization of charge. So what is meant by the quantization of charge? The principle of quantization comes from a word quanta, which means packet or bundle. It is known to us according to Planck's quantum theory. The electromagnetic waves or radiation travel in form of packets or bundles of energy, which are called quanta or photons. So the word quanta means packet or bundles. Then what is meant by the quantization? Quantization means the charge travels in form of packets. तो फिर सवाल आएगा इसका क्या फर्क पड़ेगा? So simply, in case if you are buying some milk packets from a dairy, so how many packets can you buy? Definitely you can buy 1 packet, 2 packet, 3 packet, 4, 5 and so on. But you can never buy 4.5, 5.525. यानी कि आप किसी भी डेयरी से 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि इंटीजर नंबर ऑफ पैकेट्स मिल्क पैकेट्स खरीद सकते हैं, बट 4, 4.5 और 4.25 पैकेट्स खरीदना पॉसिबल नहीं है. इसका मतलब whenever we are dealing with packets, the total number will be in case of integer numbers always. That is हम बात करेंगे अगर आप कहीं भी चार्ज देखेंगे, so total possible charge on a body that can be written as plus minus any. अब आप पूछेंगे प्लस माइनस एनी मतलब, तो प्लस माइनस एनी मतलब फिर वहीं पहुंचेंगे. द चार्ज इज ट्रांसफर्ड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड? जैसे मैंने मिल्क पैकेट में कहा, यू कैन ट्रांसफर्ड 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन. दैट मीन्स ओनली द इंटीजर नंबर्स n इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. E आपको मालूम है, E इज द पैकेट ऑफ चार्ज. अब एक सवाल बना, इस पैकेट में कितना चार्ज है? वो भी इट इज ऑल्सो नोन टू मैनी ऑफ द पर्संस. एन इलेक्ट्रॉन कंटेन्स 1.6 into 10-19 कूलॉम. सो द टोटल चार्ज कैन बी गिवन एज प्लस माइनस एनी. और लास्ट सवाल, व्हाट इज अबाउट द प्लस माइनस? सिंपली इन केस द बॉडी इज लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स, so you have to use plus sign. In case the body is gaining electrons, then you have to use the negative sign. So that's all about the basic properties of the charge. अब हम next lecture में discuss करेंगे about the Coulomb's law, its vector form और फिर other numericals. Okay.